Good morning, everyone. Today, we are going to start with the third module, that is HR policies. HR create policies and makes policies in various departments and on various topics, which starts from recruitment policy, then new staff regulation, employee orientation, staff retention policies, attendance and leave policies, grievance handling, drug alcohol abuse, employee relations, personal debts, performance evaluation, feedback and coaching, insurance policy, termination policy. So these are number of policies through which and on which the HR works. Now, why these policies are mandatory? See, if we don't say and don't inform you at the initial of online lectures कि you have to come and join and you have to mute your devices. ठीक है? This is one of the policy. Why? Because these policies are nothing but rules and regulations. So policies are equivalent to rules and regulations. So when we talk about recruitment policy, we talk about recruitment of in-house. ठीक है? So recruitment is done in-house and detailed recruitment process to guide. So wherever the information is passed on, it will be passed on in the house. In-house means in your organizations. एंड जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो हम डिटेल गाइडलाइंस जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को पास ऑन करते हैं सोशल मीडिया में हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि दैट सो एंड सो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप नंबर 1 is telephonic conversation, step number 2 is personal meeting or personal interview, step number 3 is psychometric test, step number 4 is your HR or managerial round, and 5 is your departmental or your sections or departments managers interview or specialized work or a job manager interview. So in this way we inform the recruitment process so that the other person will be ready mentally to tackle all your questions and will be ready mentally to attend all your interview sessions. Otherwise what happens is we leave home at 9 and then we come home at 9 in the PM. So it becomes a 9 a.m. and 9 p.m. interview. Now, why does it take time? When you enter in the organization at 10 or 10:30, the HR or the other persons comes by 9 or 10. They start and manage their work and schedule, and then they work on floor at 10:30, right? They handle number of people, and when they handle hundreds of people, they need to take some breaks. They may be busy somewhere, they may be busy into other organizational functions. So इसीलिए सबसे पहले हमें बताया जाता है कि इंटरव्यू विल टेक द होल डे, सो बी prepared with that and bring, they don't say that you to bring your tiffins and all, they tell you that please arrange yourself with the lunch and snacks. So detailed recruitment process बताया जाता है. Now, advertising the position to ensure that the applicant pool is diverse and qualified. सी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी इंस्टीट्यूशन ने सिर्फ इतना ही एडवर्टाइजमेंट डाला है, रिक्वायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन XYZ at the location TQP and the end date of application is so and so. अब ये कौन सा एप्लीकेशन है, किसके पोस्ट के लिए है, ये पता है. प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए है, टीचिंग का फील्ड है, बट कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से लेवल पे, जूनियर या अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, मास्टर्स, किसके लिए है, राइट? वी डोंट नो. सो एडवर्टाइजमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो इंश्योर करना है कि जो एप्लीकेंट है वो प्रॉपरली हमारे पास आए और एप्लीकेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले ताकि डाइवर्सिफाइड लोग आए उस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से एंड क्वालिफाइड लोग हमारे पास आए. देन स्क्रीनिंग और इंटरव्यूइंग कैंडिडेट. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, लोगों के इंफॉर्मेशंस को पढ़ते हैं, उनके रिज्यूम्स को पढ़ते हैं एंड देन इंटरव्यूज लेते हैं.
एंड देन हम उन्हें ऑफर करते हैं पोजीशन अगर वो सारे लेवल्स को क्रॉस करते हैं, एंड देन कंक्लूड दी सर्च। हम हमारा जो सर्च है लोगों का, इंसानों का, एक क्वालिफाइड इंसानों का, वो हम लोग कंक्लूड करते हैं। So in this way, recruitment policies are made or done or created for all these resources. Recruitment कैसा होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग कैसे जाना चाहिए, स्क्रीनिंग इंटरव्यूज कैसे होने चाहिए, पोजीशन को ऑफर करते टाइम हमें टर्म्स एंड कंडीशन पहले बताना चाहिए, एंड देन फाइनली उनको ऑन बोर्ड हम लेंगे। देन जब आप ऑन बोर्ड जाते हो तो यू बिकम अ न्यू एम्प्लॉय, एंड कुछ लोग जो है वो बहुत सालों से है, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, तो दे आर रेगुलर स्टाफ एम्प्लॉय। तो इन दोनों को ओरिएंटेशन देना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ओरिएंटेशन का मतलब है ट्रेनिंग पीरियड। सो 90 डेज ओरिएंटेशन पीरियड इज इम्पोर्टेंट। क्यों ओरिएंटेशन इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हम लोग को कम से कम ऑर्गेनाइजेशन में सेटल होने के लिए 1 से 2 महीना लगता है। ठीक है। आप कितने घंटे भी बैठो, बट आपके सामने आपका जो ट्रेनर है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन कि वो कितना आपको कंफर्टेबल करता है। बट सिर्फ उसी इंसान से आपका कनेक्शन होगा क्या ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, और भी लोग हैं। सो यू नीड टाइम टू मीट देम, टू ग्रीट देम, टू ट्रीट देम वेल, एंड इन रिवर्स गेट द सेम फीडबैक। सो 90 डेज का आपका प्रोबेशन पीरियड या ओरिएंटेशन पीरियड या फिर ट्रेनिंग पीरियड होता है। नॉर्मली 90 डेज का होना चाहिए। अब 90 डेज मतलब कितना होता है? 30 + 30 + 30, राइट? सो दैट मीन्स 3 मंथ्स। बट यहाँ पे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 महीने का होता है। नाउ दे आर नॉट बॉदर्ड कि आपका दोस्ती किसके साथ हो रहा है किसके साथ नहीं हो रहा है। ठीक है। दे जस्ट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स विथ पीपल। ठीक है। दैट इज द ओनली मोटो। एंड वो ट्रेनिंग पीरियड में आपको थोड़े गेम्स वगैरह खिलाएंगे। इस 90 डेज के ओरिएंटेशन पीरियड में आपको आपके जॉब्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे। देन इवेलुएट द एम्प्लॉयज ओवरऑल कंपैटिबिलिटी। एक बार आपको ट्रेनिंग दे दिया उन्होंने, तो इवेलुएट करेंगे आपके ओवरऑल कंपैटिबिलिटी को, कि आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, आपको कौन से डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में रखना चाहिए, आप डे शिफ्ट के लिए सूटेबल हो या नाइट शिफ्ट के लिए सूटेबल हो। एम्प्लॉय को ओरिएंट करना चाहिए कि आपका जॉब कैसा है। सो ओरिएंट द एम्प्लॉय टू द जॉब। जॉब आपका क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब हम लोग को हमारे पॉलिसीज के थ्रू उन्हें बताना है। एक तो 90 डेज में हम लोग को ये पूरा टास्क जो है असेस करना, इवेलुएट करना और जॉब के बारे में ओरिएंट करना 90 डेज में कंप्लीट करना है। अब नए रेगुलर स्टाफ के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एचआर के डेस्क पे। अब एचआर को क्या करना चाहिए? हर एक स्टाफ का जो फाइल है वो मेंटेन होना चाहिए। अब हर एक स्टाफ का फाइल का मतलब क्या है? वो फाइल्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होंगे, जैसे आपका आईडी प्रूफ, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर या पैन कार्ड का जेरोक्स, फिर आपका एड्रेस प्रूफ का जेरोक्स होगा वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का कॉपी होगा, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट के कॉपी होंगे, आपके पर्सनल सर्टिफिकेट्स के या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के कॉपी होंगे। अब ये क्यों मेंटेन करना है? बिकॉज किसी ने भी हमें किसी भी एम्प्लॉय के बारे में पूछा तो रेडीमेड एक फाइल रेडी है, सीधे उनको फाइल का कॉपी दो, ओरिजिनल नहीं, जेरोक्स दो, जेरोक्स का भी जेरोक्स। ठीक है। तो वो दे दो एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन। क्यों? कोई भी लीगल, सोशल, पर्सनल केस आ सकता है, कोई भी पुलिस इंक्वायरी हो सकती है, या फिर किसी भी सीनियर मैनेजर ने या फिर सीईओ ने पूछा होगा कि भाई इसका पूरा मेरे को कुंडली दो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट पूरा कुंडली, तो पूरा कुंडली इंक्लूड योर एड्रेस, नेम, लोकेशन, क्या पढ़ा है, क्या कर रहा है, कितने साल काम किया है। सो विथ रिज्यूम योर पर्सनल डॉक्यूमेंट विल ऑल्सो बी शेयर्ड। ठीक है। ये नए रेगुलर, नए स्टाफ्स के लिए है। और जब रेगुलर हो जाते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, तब से उनका फाइल मेंटेन किया जाता है। एक्चुअली डे वन में ये फाइल क्रिएट किया जाता है। आपके हायरिंग से पहले ही आपको सब बोला जाता है कि ये कॉपी भेजो, वो कॉपी भेजो, अटैच करके भेजो।
या जब ज्वाइन करोगे उस दिन लेकर आओ, तो आपका पहला दिन डॉक्यूमेंटेशन में जाता है। देन वी हैव स्टाफ रिटेंशन पॉलिसीज। एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एम्प्लॉयज आर एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको मेंटेन करके रखना, उनको रिटेन करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है। अगर समझिए आप मेरे साथ काम कर रहे हो एंड यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट समवेयर यू गॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड आपने बोला कि सर मेरे को अपॉर्चुनिटी आया है एंड अभी के जॉब से मुझे एक 5 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल रहा है, टाइमिंग ऐसा ऐसा है, लोकेशन ये जगह पे है एंड वर्क एटमॉस्फेयर सुना है बहुत अच्छा है। देन आई सेड कि ठीक है, नो इश्यूज, बट जो फैसिलिटी, जो कंफर्ट, जो घर जैसा माहौल आपको वहाँ मिलेगा, तो आप बिंदास जाइए। अगर आपको जब चाहिए तब छुट्टी, जब चाहिए तब आप ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा अर्निंग करो, जब चाहिए तब आपको बिजनेस में प्रेशर मिले, और जब बिजनेस में कोई प्रेशर नहीं है तो आपको रिलैक्स रखते हैं, तो ऐसा अगर माहौल है तो जाओ। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू इन्फॉर्म दैट पर्सन कि these facilities have been given by our organization। ठीक है। अब हमने ये फैसिलिटीज दिए हैं, क्या सेम फैसिलिटी, क्या सेम फैसिलिटी आपको वहां मिलेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में? अगर हाँ है तो गो अहेड, अगर ना है तो थिंक ट्वाइस। तो ये हमारा रिटेंशन पॉलिसी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट प्लेस है या फिर जो सिस्टम पे अटेंशन है, वो इन्फॉर्म करना है हम लोग को, ताकि हमारा जो टैलेंट है वो हमें छोड़ के ना जाए। टैलेंट इन द सेंस ह्यूमन और दी एम्प्लॉय, ताकि हम उसे रिटेन करें। क्योंकि फिर से एक नए एम्प्लॉय को हायर करो, फिर उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओरिएंट करो, फिर उसके बाद उनको थोड़ा टाइम दो सेटल होने के लिए। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी एंड टाइम ऑन न्यू एम्प्लॉय, लेट्स व्हाई नॉट वेस्ट or spend or invest money in the employee who is already working with us। Then attention is given to attracting and selecting the right people। बहुत सारा अटेंशन जो है हमारा अट्रैक्ट करने में निकल जाता है, हमारे राइट पीपल्स को, राइट लोगों को। सो स्टाफ रिटेंशन पॉलिसी इज ऑल्सो मेड और इनिशिएटेड। नाउ स्टाफ रिटेंशन अलग अलग बेसिस पे भी होता है। वी फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड डू नॉट टेक ऑन दिस चैलेंजेस alone। सो बेसिकली कल्चर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, हम लोग हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, और हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे पीपल, जो लोग हैं, उन्हें ग्रो करने की, प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं और एक अच्छा सिस्टम देते हैं, मेंटेन करते हैं, ताकि उनका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो रुके नहीं। सो वी फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। सो एचआर रिटेंशन में या स्टाफ रिटेंशन में क्या होता है, कल्चर ऑफ इंटरडिपेंडेंस हम लोग अप्लाई करते हैं एंड हम लोग उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर वो फिर से खुश नहीं है इस मामले में एंड जाना चाहता है छोड़ के, तो वेल एंड गुड, बट वी आर ऑफरिंग यू सो एंड सो थिंग। देन अटेंडेंस एंड लीव पॉलिसीज। सबके पास कुछ ना कुछ पॉलिसीज है। ठीक है। Being absent from or reporting to work after the scheduled beginning time requires the employee to properly notify the supervisor in advance। तो पहले क्या होता था कि अटेंडेंस सिस्टम प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल वे से नहीं होता था। मस्टर में साइन करो, एक अटेंडेंस बुक होता है, उसको लॉन्ग बुक होता है, उसको मस्टर बोलते हैं। एक्चुअली वो मास्टर बुक है क्योंकि लॉन्ग एंड लेंदी है। ठीक है। तो उसको मास्टर बोलते बोलते लोगों ने मस्टर कर दिया। अब वो मस्टर में हम लोग साइन करते हैं, कई बार हम लोग भूल जाते हैं साइन करना और सोचते हैं कि कल करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका सुपरवाइजर या मैनेजर आता है, आपका साइन नहीं देखता है ना, एब्सेंट बताता है। देन ऑन द अदर डे यू गो एंड यू आस्क हिम कि सर एब्सेंट लगा है, कल तो मैं आया था, एंड द पर्सन सेज कि क्या प्रूफ है तुम कल आए थे। एंड देन फिर हमारे को एम्प्लॉयज को वर्कर्स को बुलाओ कि सर हाँ ये आया था, कल आपको मिला भी था, एक्स वाई जेड।
सो यू नीड टू इन्फॉर्म। और इसलिए अभी मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ है, हर जगह में आपका जो एंट्री है दरवाजे पे, वहां पे आपको स्कैन करना जरूरी है। प्लस आपका एक टाइम शीट होता है कॉर्पोरेट में, वो टाइम शीट भरना भी बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, अदरवाइज आपका एब्सेंट लगेगा। द डिपार्टमेंट हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वर्क शेड्यूल। जो भी डिपार्टमेंट हेड है वो वर्क शेड्यूल मेंटेन करे, कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आना चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे जाएगा, कौन सा एम्प्लॉय को कहाँ से पिकअप मिलेगा, कौन सा एम्प्लॉय को कहाँ से ड्रॉप मिलेगा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। एम्प्लॉयज आर अलाउड टू टेक 3 लीव्स इन ईच क्वार्टर। हर 3 महीने में वो 3 छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेडिकल लीव्स पर ईयर 6 अलाउड है। अगर आप बीमार हो तो आप 6 दिन की छुट्टी ले सकते हो मेडिकल लीव्स में। दे कैन ऑल्सो अवेल 6 कैजुअल लीव्स। तो हर क्वार्टर में 3 छुट्टी प्लस 6 मेडिकल लीव्स प्लस 6 कैजुअल लीव्स। सो नो लीव्स आर अलाउड इन प्रोबेशन पीरियड ऑफ 90 डेज। सो 90 डेज का जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपको कैजुअल लीव मिलेगा, मेडिकल लीव मिलेगा और क्वार्टरली 3 छुट्टी मिलेगी। सो दीज आर नथिंग बट पॉलिसीज, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अपने कॉलेजेस में भी होता है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी होता है। और ये पहले ही दिन बताया जाता है। ठीक है, ताकि आप अगर सेटिस्फाइड हो, फुलफिल करते हो, इस सारे कंडीशंस को अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देन ग्रीवेंस हैंडलिंग। ग्रीवेंस मतलब प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए भी हमें, ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए ना। हम्म? तो द प्रोसीडिंग्स आर इनफॉर्मल इन नेचर। जब भी आप ग्रीवेंस हैंडल करते हो तो वो इनफॉर्मल इन नेचर होता है, आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। आपको सीधे आपके एचआर के पास जाना है और उनको अपना प्रॉब्लम बताना है। लेकिन अगर कोई जो ग्रीवेंट है उसे कोई लीगल एक्शन लेना है तो पहले इंटरनल ग्रीवेंस प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। समझो किसी एम्प्लॉय को पिकअप एंड ड्रॉप मिल रहा है, उसी पिकअप एंड ड्रॉप में दूसरा कोई मेल है, बोथ आर मेल इन दिस केस। लेकिन एक मेल ने क्या किया, M1 ने अपने सारे इंफॉर्मेशन जो है पर्सनल फैमिली वो बताता गया M2 यानी मेल 2 को। इससे क्या हुआ, मेल 2 को पता चला कि ये बहुत अमीर है और इसके घर में कैश पड़ा रहता है। तो इसने क्या किया कि झूठ बोल रहा है, तो मेरे को कल 1 लाख रुपए लाके दिखा। तो सामने वाले ने थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए 1 लाख रुपए कैश लेकर आए। 2-2 हजार के गड्ढे उन्होंने लाए। अब इसने क्या किया, चुपचाप बैग में से निकाल के अपने किसी रिलेटिव्स को या घर वालों को ऑफिस के बाहर बुलाया, दे दिया उनको, और फिर ऑर्गेनाइजेशन में एज यूजुअल नॉर्मल रहा। अब प्रोसीडिंग्स जो है, ये प्रॉब्लम है कि मेरा पैसा चोरी हो गया। प्रोसीडिंग्स में हम लोग पहला क्या करेंगे, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करेंगे, एचआर को बताएंगे। लेकिन देन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको लग रहा है कि ये नहीं सॉल्व होगा, मुझे पुलिस कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है, देन इंटरनल जो इंक्वायरी है वो रुक जाएगा, सीज मतलब स्टॉप हो जाएगा। अब वो स्टॉप होने के बाद क्या होगा, पुलिस आएगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस इंक्वायरी करेगी, पूछेगी क्यों लाया, किसने बोला, क्या जरूरत थी। तो सामने वाले M2 का नाम आएगा, एंड देन वो M2 को हिरासत में लेंगे, उसका इंटरोगेशन होगा यानी क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, एंड देन फाइनली उनको जो भी उनके आंसर्स है वो बताए जाएंगे। इस तरीके से हमारा ग्रीवेंस जो है सॉल्व होता है। ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द ग्रीवेंट shall cooperate at all stages in the investigation of grievance। तो जितने भी ग्रीवेंस वाले लोग हैं, जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है उसमें, जितने भी लोग इन्वॉल्व है इसमें, वो कोऑपरेट करने चाहिए, पार्टिसिपेट करने चाहिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहिए। देन डिटेल ग्रीवेंस प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। डिटेल में हमको ग्रीवेंस प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है और वो रिक्वायर्ड है।
सो बेसिकली ग्रीवेंस हैंडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, एंड उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के बाद हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स को इन डिटेल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू एचआर। नाउ ग्रीवेंस प्रोसीजर में नॉट बी यूज फॉर द फॉलोइंग। ग्रीवेंस प्रोसीजर जो है वो नीचे दिए गए पॉइंट्स या मुद्दों के ऊपर नहीं लागू होता। टू एड्रेस एन एम्प्लॉयज डिससेटिस्फैक्शन विद द कंपनी, कंपनी के साथ वो खुश नहीं है एम्प्लॉय, तो उसके लिए ग्रीवेंस फाइल नहीं होगा। अपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए वो अपील कर रहा है तो वो ग्रीवेंस नहीं कहा जाएगा। एक्शंस फ्रॉम इंडिविजुअल आउटसाइडर्स ऑफ द कंपनी, अब बाहर उन्हें कोई चाय वाला या फिर कोई अ, नाश्ते वाला उनको बोल रहा है कि मेरा उधारी लाके दो, तो वो उनका आउटसाइड प्रॉब्लम है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। फिर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे एचआर जो है अथॉरिटीज को लैक करता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को कुछ करने के लिए ऑप्शन नहीं है। समझो, एचआर के पास कोई परमिशन देने का कैपेसिटी नहीं है और आपको आपके सीनियर मैनेजर से ही बात करना है, एंड यू आर नॉट रेडी टू टॉक विद दैट पर्सन, देन यहाँ पे हम लोग एचआर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लोग को जो ग्रीवेंस पॉलिसी दिया गया है, जो सिस्टम दिया गया है, उसमें अगर आप डिससेटिस्फाइड हो, आपको नहीं लगता है कि ये अलग तरीके से होना चाहिए और आप बोल रहे हो कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंसी और हमारा सीक्रेसी दोनों देखना चाहिए, तो भी आप इसे ग्रीवेंस हैंडलिंग में नहीं डाल सकते, नॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं। अब ग्रीवेंस हैंडलिंग का प्रोसेस नंबर 1, ग्रीवेंस शेल स्टेट द नेचर ऑफ द ग्रीवेंस इन राइटिंग। जो भी नेचर ऑफ द ग्रीवेंस है उनको लिखित रूप में देना जरूरी है कि मेरे साथ क्या हुआ और मुझे क्या चाहिए। डिसीजन जो है डिपार्टमेंटल ऑफिशियल का, वो भी इन रिटर्न हम लिया जाएगा। अगर किसी का भी नाम वहां पे आया तो सामने वाले को बुलाएंगे, बोलेंगे कि आपके नाम पे एक्स वाई जेड पर्सन ने कंप्लेंट किया है, ठीक है, और आपका जो भी कहना है वो आप हमको रिटर्न में लिख के दें, आपके अगेंस्ट में ये केस फाइल हुआ है। सो कॉपीज ऑफ द अपील एंड डिसीजन जो है वो एचआर को फॉरवर्ड किया जाता है। एचआर को फॉरवर्ड करने के बाद एचआर वो पढ़ता है। अब यहाँ पे जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है या फिर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं और जो ग्रीवेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो डिसीजन एट द स्टेज लेवल पे, स्टेज 1 पे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर से इन रिटर्न में ह्यूमन रिसोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग ग्रीवेंस हैंडलिंग डिपार्टमेंट में बात कर रहे थे स्टेज 1 में, स्टेज 2 में हम एचआर से डायरेक्टली बात करेंगे। फिर एचआर इन्वेस्टिगेट करेगा इस अपील को, सीनियर ऑफिसर ऑफिसर जो है वो इसमें डिसीजन लेंगे, इन राइटिंग में डिसीजन लेंगे, एंड देन वो हमारा फाइनल जो रिपोर्ट है एचआर सबमिट करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होता है। एंड देन थर्ड और द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन तालिस्मान सॉल्यूशंस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कोई भी ड्रग एडिक्शन या फिर अल्कोहल कंज्यूम करके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकता। So being under the influence or the unauthorized use of drug alcohol, reporting to work under the influence of drug or alcohol, अगर कोई ड्रग करके या अल्कोहल पीकर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उन्हें तुरंत बहिष्कार करने का अथॉरिटी एचआर को है। देन करेक्टिव एक्शंस, वर्बल एंड रिटन वार्निंग दिया जाता है कि आप कंज्यूम करके आए हो ड्रग या अल्कोहल, एंड अगर फिर भी वार्निंग के बाद अगर नहीं सुने तो टर्मिनेशन किया जा सकता है उनको। फिर एम्प्लॉय रिलेशंस, ठीक है, सो सुपरवाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग, असिस्टिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग एंड करेक्टिंग बिहेवियर्स ऑफ स्टाफ। सो सुपरवाइजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रेन करे, असिस्ट करे, मोटिवेट करे और लोगों के बिहेवियर को करेक्ट करे। सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्म करे अपने सबॉर्डिनेट्स को कि मैनेजमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है। सुपरवाइजर ने प्रॉपर करेक्ट स्टेप्स लेने चाहिए हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और जो भी डिस्ट्रप्शंस है वो कम से कम हो। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन जो है वो यूटिलाइज किया जाना चाहिए रेगुलरली, और नॉन प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज और अलग अलग वार्निंग्स हमें देने चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ओरल वार्निंग, रिटर्न वार्निंग,
अगर जरूरत पड़े तो सस्पेंड भी करो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को और अल्टीमेटली डिस्चार्ज करो उन सारे प्रॉब्लम्स को। ओरल वार्निंग्स में अलग अलग टिपिकल इश्यूज जो है हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉन्फ्रेंस हो गया, सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के बीच में कोई गर्मा गर्मी हो गई, बात हो गई, तो हम लोग मूवीज में, वेब सीरीज में देखते हैं कि कल से तुम ऑफिस मत आना, दैट्स एन ओरल डिसीजन। उसके बाद उनको रिटर्न डॉक्यूमेंट चला जाता है। और एम्प्लॉय जो है वो अलग अलग इश्यूज उनको जो लगता है वो रिटर्न में हमें दे सकते हैं। और एम्प्लॉयज ने अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो ऑर्गेनाइजेशन या जो अथॉरिटी है वो उनको रिटर्न में, लेटर्स में, मेमो में और अलग अलग रूप में उनको वो वार्निंग दिया जाएगा। और एम्प्लॉयज जो है वो एग्जाम्पशन नहीं है उन्हें कोई भी सस्पेंडेड होना विदाउट पे फॉर इंसिडेंट विच आर सीरियस इनफ टू वारंट समबडी सस्पेंशन। सो देर इज नो एग्जाम्पशन कि आपको सस्पेंड किया गया और आपका सैलरी नहीं दिया गया। सस्पेंड हुआ और उस मंथ में आपने काम किया तो आपको सैलरी तो मिलेगा ही, बट आपका सस्पेंशन पक्का है, वहां पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। Then personal debt, the company expects its employee to be prompt in the payment. Any employee who fails to do so may be subject to a write-off, sequestration और other payroll deduction. किसी ने अगर कंपनी के साथ लोन लिया है, पर्सनल लोन, तो वो टाइम पे पे करने चाहिए, अदरवाइज उनके ऊपर सिक्वेस्ट्रियल और अदर पेरोल डिडक्शन, मतलब उनके सैलरी से ज़्यादा डिडक्शन किया जाएगा। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए भी अलग अलग पॉलिसीज है। The company's performance evaluation system is called performance evaluation, that is PE. The PE system is designed to promote and document performance assessment based on essential job functions and clear, realistic job standards. Promote high level of employee performance through consistent feedback from supervisors. So परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरीके से वो इवैल्यूएशन हो रहा है, क्या इवैल्यूएशन जो है वो प्रॉपर है, या पर्टिकुलर लेवल पे वो रियलिस्टिकली हम लोग एक पर्टिकुलर जॉब के लिए काम कर रहे हैं और वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कंसिस्टेंटली हमें फीडबैक लेना सुपीरियर से ज़रूरी है। अब फीडबैक लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कोचिंग करते हैं। सो ऑनगोइंग बेसिस एट द ऑप्शनल मीडिया रिव्यू हम लोग को लेना ज़रूरी है। मीडिया रिव्यू हर 6 महीने में एक रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है कि आर यू सेटिस्फाइड विद द वर्क और नॉट। अगर नहीं है तो आप क्या ऑप्शन सोच रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में रह के सीखने का है या फिर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आपको जाना है। फिर पर्पस क्या है फीडबैक का, ताकि हम कोच करें हमारे जो प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉयज के, वो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमें पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से तरीके का लर्निंग रिक्वायरमेंट है। फिर सुपरवाइजर और एम्प्लॉय डिस्कस करेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है हमारे पास और कौन से स्टैंडर्ड हम लोग सेट कर सकते हैं। देन इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में आपको एचआर ज्वाइनिंग के टाइम पे बता देते हैं कि कंपनी जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ एक्सीडेंट या डेथ इंश्योरेंस कवर करता है आपको। और इसमें जो जो इंक्लूडेड है वो उनके नाम बताते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, कलीग हो, सिबलिंग्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, पहले इन्फॉर्म किया जाता है। और ये सिर्फ रेगुलर और कंफर्म्ड एम्प्लॉयज के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए नहीं है। फिर टर्मिनेशन पॉलिसीज है कि आपको अगर टर्मिनेट करेंगे तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, और टर्मिनेशन के टाइम पे आपको सैलरी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कौन से ग्राउंड्स पे आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। फिर एम्प्लॉय का जो टर्मिनेशन है उसका रीजन भी वो बताया जाएगा। जनरली इमिडिएटली आपको टर्मिनेट किया जाएगा, मतलब आज टर्मिनेट किया तो कल से आप काम पे मत आओ। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे आपने मिसकंडक्ट किया है, आपको रीजन के साथ वो टर्मिनेशन का नोटिस आपको देंगे। देन टर्मिनेशन जो है एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंटेड डिस्कशन होगा, उसके बाद ही आपको टर्मिनेट किया जाएगा, मतलब आपसे रिटर्न लेखा जोखा पूछा जाएगा, उसके बाद आपको टर्मिनेट किया जाएगा। नाउ द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, वो फॉलोइंग चीजें हैं: ethical principles, honesty, integrity, promise keeping, loyalty, fairness, respect for others,
लॉ अबाइडिंग, कमिटमेंट टू एक्सेलेंस, रेपुटेशन एंड मॉरल, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी। ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट्स इंक्लूडेड इन्होंने बताया है, तो ये हम लोग अगले क्लास में लेंगे, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम राइट नाउ एंड इट वोंट बी completed. If you have any doubts, you can discuss with me right now, or else we will take a leave.